I had a case where I treated a ACL tear with a meniscal injury, and he was an athlete and a fast bowler also. So if this is the knee and this is the ACL, अगर आपका ACL पूरा भी निकल गया तो there is a protocol that says how you can heal it well. National Elite Health Bills में physiotherapist को first contact professional बनाया गया. Human body is something that is made to be natural. तो physiotherapist का main काम ये है, like you charge whatever you charge, but you should actually listen to the patient. Chemistry physics को ठीक नहीं कर सकता है. यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट वाला राजा है. Good afternoon, everyone. Welcome to New Life Talks. We have with us a very special guest today, Dr. Altamash Qureshi, who is a chief physiotherapist and mainly treats pain at New Life Healthcare. Today, he'll be answering and clearing all our doubts on pain relief and physiotherapy. Hi, Doctor. How are you doing? I am doing well. How are you doing? I'm good. Thank you. So let's begin with the journey, Doctor. Tell us how you chose physiotherapy as a specialty and got into this field. First of all, I would like to thank you for arranging this talk, because there are a lot of people who are concerned about what physiotherapy does and how a physiotherapist can help with pain relief and all other conditions. So to start off with my journey, I cleared off my 12th exam in 2015. Then I cleared the CT exam where I got around 138 or something out of 200. So as other medicals, I was also targeting MBBS, but I didn't get into it. By grace of God, I got into physiotherapy. And after clearing 4.5 years of exams with internship, with postings and everything, I cleared off my degree in 2020. Yeah, COVID. Okay. And post that, I have been working mainly in the field of pain relief and rehab. Oh, nice. So what exactly do you treat at New Life Healthcare? At New Life Healthcare, we have a number of cases ranging from acute pain, chronic pain to some injury, or maybe some post-surgical rehab, or maybe I would say some patient who has been in pain for almost 20 years, and some women cases, which example a housewife in pain for maybe 5 years, 10 years, and that pain is not getting better. So mainly what I am specialized in is in treating pain of any kind from head to toe and of any duration. It could be 1 year, 2 year, 1 month, 10 years. The maximum that I have seen is a patient with back pain. He's a teacher, and back pain was around 20 years as far as I remember. Okay. And that patient got very much better in around, if I remember, 1.5 or 2 months of physical therapy and rehab. He got around 60 to 70% better. So we'll be posting these patient reviews, but just to clarify your answer. Okay. So can physiotherapy also prevent surgery? To give you a very broader aspect answer, yes, and I'll explain it to you. So any surgery, there are two kinds of surgery. One is a planned surgery. The other one is acute surgery, or I would say an emergency surgery. So physiotherapy mainly works in the phase of planned surgeries. Example, there's a patient who has knee pain, and he has some arthritis in his knee. So what the surgeon tells is you can go with the physical therapy, with medicines, with supplements, and एक वक्त आता है when the patient also feels and doctor also feels कि भाई अब ये better नहीं हो सकता. But then also there is a big scope of physical therapy. Okay. Because it's like some surgeons, I would say they have a bit of limited knowledge about physical therapy because he's a surgeon. Okay, and a physical therapist knows what he is capable of, and there have been a big amount of literature for arthritic cases, or I would say meniscal tears, ACL tear, PCL tear, and shoulder injuries, gym injuries, that even a grade of, I would say, a grade 3 ACL, which you must have heard a number of athletes go through it. ACL tear in the knee, I had a case where I treated a ACL tear with a meniscal injury. That is like a bit complex injury in the knee, and he was an athlete and a fast bowler also. So I started off with this treatment with the thought of kind of preventing the surgery, because he is like my colleague's nephew. So I started off with the treatment, but gradually, so as I said, there's a literature to it. So there is a thing called as cross bracing protocol. So cross bracing protocol ये बताता है कि आपका अगर ACL, so if this is the knee and this is the ACL, अगर आपका ACL पूरा भी निकल गया तो there is a protocol that says how you can heal it well.
Okay. तो प्रोटोकॉल हमने उनके लिए फॉलो किया एंड धीरे धीरे करके ही गॉट बेटर एंड एट द एंड ऑफ द डे विद फिजिकल थेरेपी ही वाज एबल टू go back to bowling and he's a fast bowler by the way. So you can imagine physiotherapy किस तरीके से surgeries prevent कर सकता है. So it's all about I would say biomechanics. Biomechanics is something that I would say physics in the human body. So mostly medical conditions nowadays are diagnosed like the doctor may tell you it's a slip disc or it may be a sciatica or a ACL injury or it could be neck pain, back pain, whatever. So all of these are medical diagnoses, right? Okay. But what if it is diagnosed biomechanically? It is a way different thing that we look at. Okay. So biomechanics is the physics inside the human body. A physical therapist is someone who will diagnose the problem in a way that it is mainly based on the mechanics of the human body. So any mechanical alteration inside will cause the problem. Okay. So what we tend to do is we tend to solve that mechanical problem and try to do it in the natural way rather than the surgery. And then we can maybe prevent that person from surgery. Okay. Since you're talking about athletes, do athletes need a different kind of treatment as compared to someone who's doing a desk job? I would say yes. So athletic body ऐसी होती है जिसका response fast होता है. Okay. And anyone who is a sedentary person who is doing a desk job, उनका body में जो changes है वो slow होते हैं. Because he's not been active, he's not been using his muscles, and the joints are quite stiff for a person who's sitting sitting for a long time. Okay. तो एथलेटिक बॉडी में भी एज फिजिकल थेरेपिस्ट हम लोग थोड़ा फास्ट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं. एंड एग्जांपल एनी एथलीट हैज आई वुड से अ नेक पेन एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टिफनेस हियर. So I can go towards more aggressive therapies like dry needling or maybe ISTM or something like that to release of that muscle easily. अच्छा. लेकिन यही चीज अगर मैंने डे 1 पे एक जनरल पॉपुलेशन में कर दिया देन नेक्स्ट डे पेशेंट ही नहीं आएगा. अच्छा ऐसा. आई कैन गारंटी दैट. ओह. पेशेंट विल बी लाइक के ट्रीटमेंट तो किया, ट्रीटमेंट से अच्छा होना चाहिए था लेकिन मेरा दर्द इतना फ्लेयर अप हो गया कि अभी वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना ही नहीं है. So athletes recover faster there? Athletes recover faster there, but there is a thing to it. So any treatment that a physical therapist does, it changes something in the body. As I talked about biomechanics. तो समझो मैंने कुछ चीज चेंज किया, so body try to accept that change. Okay. अभी वो चेंज एक्सेप्ट करने का जनरल टाइम ड्यूरेशन इज आई वुड से 24 to 48 hours. Okay. So example, आज आप मेरे पास आए नेक पेन के लिए जनरल पॉपुलेशन में एंड आई ट्रीटेड वेरी अग्रेसिवली. Okay. Next day morning patient won't be able to move the neck. अच्छा. But next day evening or by next day like day after that day morning patient will feel better. Okay. लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी ना, तब तक तो फिजियोथेरेपिस्ट का माइंडसेट, पेशेंट का माइंडसेट ये बन जाता है कि ये डॉक्टर के पास अब जाना ही नहीं. हाँ. उसने एक ही बार ट्रीटमेंट किया एंड देन लाइक आई गॉट स्टिफ, मैं मूव ही नहीं कर पाया. बट दैट्स नॉट हाउ इट इज. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे ट्रीटमेंट भी ऐसे हो जैसे एक चाबी से सब ताले नहीं खुलते ना. सो इट्स लाइक कि हमको पेशेंट वाइज ट्रीटमेंट वैसे बनाने पड़ते हैं कि वो पेशेंट भी ठीक हो, उसको सोरनेस भी क्रिएट ना हो, उसका बॉडी एक्सेप्ट भी करे. इट्स लाइक अ वे ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स दैट वी हैव. पेशेंट वाइज वी सिलेक्ट द ट्रीटमेंट और उसके हिसाब से उनको ट्रीट करते हैं. Okay. That's how it is. So this soreness that you mentioned just now, so how do you know when exactly do you use an ice pack or a heat pad? Okay. So just to give you a gist of it, earlier there was a protocol towards injuries that was internationally published. And now the latest protocol that we have in the research is peace and love protocol. अब ये पूरे प्रोटोकॉल में आइस ही नहीं है. Okay. Just to explain. So peace and love में peace, protection, ease, elevation, ease, vascularity. A is avoid anti-inflammatories. So like painkillers that people have, उसको avoid करने के लिए बोला गया. And पूरे प्रोटोकॉल में आइस ही नहीं है. Okay. So आइसिंग का जैसे एक्यूट इंजरीज में अगर यूज करना है तो यू कैन यूज इट अगर इंजुरी के बाद इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है. अगर इन्फ्लेमेशन इतना नहीं है, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज डोंट यूज आइस, डोंट यूज अ हॉट पैक. Okay. एंड एनीथिंग Inflammation as in? इन्फ्लेमेशन एज इन से सूज जाता है हाथ. समझो हाथ पे मुझे यहाँ पे इफ आई एम अ बॉक्सर, Okay. आई पंच समथिंग एंड यहाँ पे सूज गया Okay. एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और सूजन इतना ज्यादा है कि मैं हाथ भी मूव नहीं कर सकता. Okay. At that point they can ice it, and it's very much recommended that they should consult a physiotherapist as soon as the injury has happened. Oh. And just to tell you one very important thing, there is a bill that was released by Government of India, that is National Elite Health Bill.
Okay. So example, if you get injured by yourself, you will just go to a doctor in Correct. the vicinity, right? Yeah. और किसी को पता है तो कोई ऑर्थोपेडिक के पास जाएगा, या फिर Hmm. पास में जो डॉक्टर पहले मिला उसके पास चला जाएगा. Hmm. एंड कहीं ना कहीं देयर इज अ थिंग इन द इंडियन सोसाइटी जो मेडिकल फील्ड में है कि फिजियोथेरेपिस्ट के बाद पास आदमी किसी डॉक्टर के रेफरेंस के बाद ही जा सकता Yeah. है, राइट? Hmm. एंड दिस इज वेरी मच देयर. Correct. बट नेशनल हेल्थ बिल्स में फिजियोथेरेपिस्ट को फर्स्ट कॉन्टैक्ट प्रोफेशनल बनाया गया. फर्स्ट कॉन्टैक्ट प्रोफेशनल मतलब समझो मुझे, मैं बॉक्सिंग कर रहा था, मुझे मार लग गया, Hmm. सो आई डोंट हैव टू गो टू द जीपी और आई डोंट हैव टू गो टू द सर्जन डायरेक्टली. अगर मुझे लगा कि भाई ये पेन हो रहा है एंड इंजरी हो चुकी है, आई कैन डायरेक्टली गो टू द फिजियोथेरेपिस्ट. Okay. That level of consultant practice they are promoting the physiotherapist now. Okay. लेकिन ये पेशेंट्स को पता नहीं है, सो इट इज Yeah. वेरी मच गुड कि हम लोग इस बारे में बात करें ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले. Hmm. एंड जिसको भी कुछ इंजुरी हुई है या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, दे कैन डायरेक्टली गो टू द फिजियोथेरेपिस्ट, ताकि Okay. उनका इलाज ऑन द स्पॉट शुरू हो जाए. अगर फिजियोथेरेपिस्ट को लगता है कि भाई हमें ऑर्थोपेडिक ओपिनियन लेना है या किसी सर्जन का ओपिनियन लेना है, देन दे कैन रेफर द पेशेंट देयर एंड डू द इन्वेस्टिगेशन एंड देन टेक द प्लान अहेड. Okay. And coming to the hot pack, I would suggest ke if the pain or the is chronic, that will lead to stiffness. Hmm. Example, anyone with neck pain and वो pain अगर 6 महीना 1 साल रहा, Hmm. उसके बाद patient will feel कि यार neck अभी मेरा stiff रहने लगा है. तो stiffness के लिए hot pack is very good. Okay. And cold pack, I would say don't use cold pack For stiffness. And if it is a chronic pain, like more than 3 months, 6 months, don't use the cold pack. Oh. Hot pack will give you very much better results. Okay. So you're talking about manual therapy. Is that similar to what chiropractitioners do? So chiropractic is a philosophy जिसमें they make adjustments. Right. So mostly what they tend to do is, example, this is the spine, Hmm. and this is one segment, this is the other segment, this is the other segment. What a chiropractic philosophy says, example, this segment is moved like this, Hmm. and then it is creating the problems down. Okay. So what the chiropractic philosophy says, जो ऐसा है उसको आप ऐसा कर दो, आपका काम हो गया. Correct. But nowadays the trend that I am seeing on Instagram, on YouTube, the chiropractors, I would say the so-called chiropractors, ऊपर से नीचे तक सब हड्डी फोड़ देते हैं. हाँ. That's true. मतलब neck, Correct. mid back and low Full body. back and knee and ears, and there are people even squeezing the belly, Yeah. and I don't know what not they are doing, and उसको chiropractic का नाम देके they are kind of trying That's to supposed to be done. that is not supposed to be done in chiropractic philosophy. Oh. So chiropractic is very specific. So अगर मैं आपको बोलूँ विशान उधर पे निशाना लगाना है, तो आप कैसे निशाना लगाओगे? एकदम देख के एम लेके लगाओगे ना. Chiropractic सिर्फ वही है. Oh. So I went to Bangalore, and there was a chiropractor from South America who came in, and he taught us the chiropractic philosophy and how to adjust and all of that. So वो बंदे ने बताया कि chiropractic actually एक स्नाइपर होता है ना, Oh. वो वाला काम है कि आपको वहीं पे एडजस्ट करना है जहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ है. Okay. तो एज आई सेड कि सो आई काइंड ऑफ ट्राई टू अप्लाई दिस इन प्रैक्टिस. सो एज आई सेड कि बायोमैकेनिकली कुछ एक चीज हुआ होगा जिसके बाद सब खराब हुआ है, Hmm. राइट? सो एग्जांपल, अ पेशेंट विद बैक पेन कम्स इन एंड उसका स्पाइन ऐसे टेढ़ा हो गया है एंड स्पैज्म हो गया एंड कांट Okay. सिट, कांट बेंड, ऑल ऑफ दैट. देन आई टेंड टू गो बैक अगेन हिस्ट्री में. पेशेंट बोलता है सर मैं एक बार गिरी थी. Okay. अभी कुछ टाइम पहले एक पेशेंट है, मैंने पूछा आप गिरे थे क्या? नहीं गिरे, नहीं गिरे, नहीं गिरे, नहीं गिरे. एक दिन आके बोलते सर मैं गिरी थी. फिर वो जो गिरे थे ना, वहां से वो पेशेंट कैसा गिरा है. सो इट कुड बी अ फॉल लाइक दिस, इट कुड बी अ फॉल लाइक दिस, इट कुड बी अ फॉल लाइक दिस ऑन द Okay. पेल्विस. Okay. तो ये और ये, इससे पूरा बायोमैकेनिक्स चेंज हो जाता है. Yeah. या एंड आई हैव सीन केसेस के जिसमें स्पाइन में बहुत सारे ये होते हैं कर्वेचर्स. Okay. So this is lordosis, this is kyphosis, this is like the S shape, or I would say the lateral deviation is scoliosis. Any scoliosis of lumbar spine or any scoliosis in the back, जिसमें back के जो spine के segments है वो ऐसे घूम गए हैं, Hmm. उसका history of fall होगा ही होगा. ये मैंने देखा प्रैक्टिस में. Oh. हिस्ट्री ऑफ फॉल में उसका जो पेल्विस है ना, Hmm. वो पेल्विस में ऐसा पुश आया, जैसे एग्जांपल पेशेंट ऐसे गिरा तो उसका राइट साइड का पेल्विस ऊपर चला गया. Okay. तो उसमें वही चीज उसका स्कोलियोसिस का कारण बन जाती है. सो एनीवन हु इज काइंड ऑफ ट्रीटिंग दैट, लाइक बीइंग अ जनरल फिजियोथेरेपिस्ट, मुझे भी ये चीज नहीं पता थी.
अभी वो कायरोप्रैक्टर ने बताया तब मुझे दिमाग में क्लिक हुआ, यार ये चीज तो मतलब दिस इज नेक्स्ट लेवल। अगर आपको फिलोसफी पता है, अगर आप बायोमैकेनिक्स, कायरोप्रैक्टिक फिलोसफी, ये दोनों तीनों चीज आप एक साथ अप्लाई कर सकते हो, और उसमें लाइक आई विल टेल यू, आई डोंट थिंक यू विल बिलीव इट, आई ट्रीटेड अ नी पेन विदाउट इवन टचिंग द नी। So that lady came, so he told me कि सर मैं जब नी स्ट्रेट रखती हूँ तो मैं स्ट्रेट नहीं रख सकती, फोल्ड करती हूँ तो फोल्ड नहीं कर सकती, और मुझे ऐसे मतलब बैक ऑफ द नी में ऐसे मतलब फ्रेची फीलिंग जैसा आता है। एंड डॉक्टर को दिखाया मैंने, तो हमें अभी एमआरआई निकालने नहीं का। एंड आई वाज लाइक ये चीज मतलब मैच नहीं हो रही है कि फोल्ड भी नहीं कर सकते, एक्सटेंड भी नहीं कर सकते, मार भी नहीं लगा है, ऐसे कैसे हो जाएगा। देन आई एनालाइज कि उनका जो स्ट्रेट नहीं कर सकते या फोल्ड नहीं कर सकते, दैट वाज बिकॉज ऑफ समथिंग इन द पेल्विस and the cervical spine. And you got to know that, right? Because she so there are specific methods by which we assess. So example I am someone, अगर मैंने किसी पेशेंट का नेक हाथ में पकड़ा तो मैं उसका बिहेवियर भी बता दूंगा। अभी आप बोलोगे डॉक्टर साहब ये क्या मतलब फिजियोथेरेपी करो ना। हाँ, या so when I hold the neck, मतलब पेशेंट won't like any person, if I tell you कि मैंने नेक पकड़ के बता दिया उसका बिहेवियर कैसा, आप बोलोगे तो क्या बात कर रहे हो, अपना अपना फिजियोथेरेपी करो ना। बट वैसा नहीं होता है। एंड द वे वी एनालाइज कि कौन सा सेगमेंट कहाँ है क्या नहीं है, उससे पता चल जाता है कि भाई नी का जो प्रेशर है, जो नी में जो पुलिंग सेंसेशन है, तो दैट पुलिंग सेंसेशन वाज एक्चुअली द नर्व दैट वाज इन द बैक, एंड दैट इज व्हाई शी इज नॉट एबल टू एक्सटेंड द नी, बिकॉज बैक से नर्व पीछे से ऐसे जा रहा है। जैसे ही वो पैर सीधा रखते थे तो वो नर्व बैक से खींचता था। तो आई जस्ट मोबिलाइज हर नेक एंड पेल्विस लाइक द बैक एरिया। ऑटोमेटिकली पेशेंट को बेटर हो गया, ऑटोमेटिकली फर्स्ट सिटिंग, लाइक विद इन आई वुड से 20-30 मिनट्स। अब पेशेंट इफ समवन डज इट टू यू, आप तो मतलब ऐसे सोचोगे यार ये बंदे ने नी को छुआ भी नहीं, एंड वो बेचारी क्या एमआरआई कराने जा रही है, उसमें क्या ही आता है एमआरआई में भी। इफ आई टेल यू, एमआरआई भी ऐसा हो गया आज के जमाने में, मतलब एमआरआई के नीचे एक वर्ड लिखा होता है जिसका सिंपल फिलोसफी में बोलूं तो काइंडली कोरिलेट क्लिनिकली। इसका मतलब है कि हमने तो रिपोर्ट दे दिया, अभी तुम जानो, पेशेंट जाने, तुम चेक करो अच्छे से, तुम्हारा कॉल है, तुम वो पेशेंट को कैसे नजरिए से लिखते हो, उसको कैसा ट्रीट करते हो। एंड वो लोग ऐसा लिखते हैं कि एमआरआई हैज सम लिमिटेशंस और एनी स्कैन हैज सम लिमिटेशन, काइंडली कोरिलेट क्लिनिकली। तो डॉक्टर का काम है कि एमआरआई रिपोर्ट और पेशेंट को मैच करे। अगर एमआरआई रिपोर्ट और पेशेंट मैच नहीं हो रहा है तो कुछ गड़बड़ एमआरआई में है, पेशेंट में तो बेचारे में गड़बड़ नहीं है ना। तो हम असेसमेंट करके पता कर सकते हैं कि एमआरआई में कहाँ ग्लिच आया और उसको हम लोग कैसे वो चीज को टैकल करें। और एमआरआई में जो दिखा रहे हो पेशेंट में नहीं दिख रहा है, देन वी ट्रीट द पेशेंट, नॉट द एमआरआई, राइट। इफ यू कम टू मी, एग्जाम्पल अगर मैं भी इस वक्त अपना एमआरआई निकालू तो आई कैन गिव यू दिस थिंग इन राइटिंग ऑन माई लेटर दैट आई विल हैव सम स्लिप डिस्क इनसाइड। आप बोलोगे तो आपको स्लिप डिस्क है, आप कहां से पेशेंट ट्रीट कर रहे हो। सो ह्यूमन डिस्क दैट इज देयर इन बिटवीन द टू बोन्स, उसको एक निजाम है उसका जो ऐसे बाहर आती है एंड ऐसे अंदर जाती है। दिस इज नॉर्मल बायोमैकेनिक्स इनसाइड द डिस्क। तो एग्जांपल आपने जब एमआरआई निकाला तो ऐसे बाहर था और एक तरफ था, और उस वक्त आपका एमआरआई निकला। अच्छा। फिर आपके एमआरआई में तो दिखेगा ना कि भाई वहां पे वो प्रेशर है एंड नर्व है एंड ये वो सब। अब मेरे को तो सिम्टम ही नहीं है और आपने मेरा एमआरआई निकाला तो उसमें दिखा रहा है। एंड सम ऑफ द रिसर्चर्स दे डिड अ स्टडी जिसमें वो लोग ने रिसर्च करके कुछ ऐसे लोगों को लिया जिनको इनका एमआरआई स्कैन निकाला एंड देखा कि डिस्क स्लिप्ड है एंड स्लिप डिस्क ये वो सब है अंदर। देन व्हाट दे डिड इज दे काइंड ऑफ ऑपरेटेड देम, मतलब उनका स्पाइन खोल के देखा, अंदर डिस्क स्लिप भी नहीं था। अब आप मुझे बताओ, क्योंकि उनको सिम्टम नहीं था। अब एमआरआई में हो सकता है कुछ आर्टिफैक्ट हो गया हो या फिर कुछ और वजह से वो वैसा दिखा दिया हो। सो इट्स लाइक इट्स द ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर, इट्स द ड्यूटी ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट टू ट्रीट द पेशेंट एंड नॉट द एमआरआई। वो पेशेंट आपको क्या बता रहा है, आप उस पर पूरा असेसमेंट करो। आपको अगर क्या बोलते हैं कायरोप्रैक्टिक फिलोसफी आता है तो करो, नहीं आता तो आपका जो बेसिक फिजियोथेरेपी बायोमैकेनिक्स आता है उसको देखो। एंड फिजियोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टिक में यही एक फर्क है, ये जो लोग सब पूरा तोड़फोड़ कर रहे हैं ना, ये तो गड़बड़ी कर रहे हैं। okay. आप ठीक से असेसमेंट करो, ऐसी जगह पे निशान लगाओ जो प्राइमरी सबलक्सेशन है। तो दे हैव अ थियरी कॉल्ड प्राइमरी सबलक्सेशन एंड सेकेंडरी सबलक्सेशन। तो अगर आपने प्राइमरी को ठीक किया ना तो आई वुड से एक रियल कायरोप्रैक्टिक प्रैक्टिशनर जिसने सीखा है किसी अच्छे से, तो वो या तो एक एडजस्टमेंट करेगा
या तो 2 या तो एकदम खतरनाक केस रहा तो 3 के ऊपर नहीं करेगा. Okay. So that is how it is. So this is the main difference between the chiropractic philosophy and general manual therapy. Okay. How do you treat a patient who has a bad posture and pain? Who told you that the bad posture is a thing? You read somewhere? Yeah. So bad posture and good posture, there is nothing like that. Okay. Oh. So there is a research that these people did, and they analyzed that there is nothing called as good posture, there is nothing called as a bad posture. Oh. It's a very big, I would say, a bubble जो लोगों में ऐसे मिथ बन चुका है कि भाई अच्छा पोस्चर बुरा पोस्चर ऐसी कुछ चीज होती है. ह्यूमन बॉडी इज समथिंग दैट इज मेड टू बी नेचुरल. ओके. राइट. इफ आई टेल यू कि शॉन पूरा दिन ऐसे रहना, पूरा दिन ऐसे ही आप रह सकते हो ऐसे? नहीं. 5 घंटा रह सकते हो? 2 घंटा? नहीं. जो आदमी 2 घंटा ऐसा नहीं रह सकता, आप उसको कैसे बोल सकते हो कि भाई पूरा दिन ऐसे स्ट्रेट बैठे रहना? Right. I had a case, and this guy was like, he must have seen videos, or someone would have told him कि भाई आप ऐसे झुक के रहते हो. What this guy did was he was just sitting like this. Pura time standing like this, sitting like this. Most of the time he's just like this. You won't believe, Sean. So this part of spine that is called thoracic spine, that is naturally like this. Oh. ठीक है. So anyone, जैसे मैं भी अभी बैठा हूँ, तो this is natural. And वो ऐसा से उसका thoracic spine ऐसा हो गया. Now you can imagine. Not supposed to be like that. Not supposed to be like that at all. ऐसे से, and क्योंकि ऊपर वाला spine ऐसा है. Okay. तो ये ऐसा होने की वजह से ये ऐसा हो गया. Oh. And वो बेचारा straight रह के straight ही हो गया. Then what I kind of did is, so this was a lady patient. I told her, ma'am, ऐसा कुछ नहीं है गुड बैड पोस्चर, आप आराम से आप रिलैक्स्ड रहो बस. जस्ट बी नेचुरल एंड जस्ट बी नॉर्मल. विद इन जस्ट सम टाइम स्पैन पेशेंट को ऑटोमेटिकली बेटर होने लग गया. एंड वी कैन अटेम्प्ट टू सिट स्ट्रेट एंड स्टफ. इट्स नॉट सो शी यूज्ड टू बी लाइक एकदम ऐसे. अच्छा. एंड लेडीज हैव देयर ऑरा अराउंड, राइट, एंड ऐसे एकदम ऐसे ऐसे रहना. एंड उसकी वजह से उनका जो स्पाइन ऐसा होना चाहिए था, thoracic spine, that went like this. And उसकी वजह से cervical pain था. Patient came to me with complaint of neck pain, not back pain. तो it's like biomechanically यहाँ पे alteration की वजह से neck pain create हो गया. And उसको ट्रीट करने के लिए मैंने उनको वही बोला कि भाई आप नेचुरल हो जाओ. बहुत बॉम्बार्डिंग किया एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी चेंजेस आए, तब जाके पेशेंट गॉट बेटर. नहीं तो वो तो बेचारे गुड पोस्चर करके ऐसे ही होते रहे. आई like made a blog on this, the good posture syndrome. The good posture syndrome is like, this is a made up term. I mean, this is not a medical term. कि thoracic spine ऐसा हो जाता है तो cervical में पेन होगा या फिर लंबार में पेन होगा. एंड आपको सिर्फ यही करना है कि आप नेचुरल हो जाओ. If you are sitting like this, that is also fine. You are sitting like this, that is also fine. But spine is all about movement. अगर आपने उसको मूवमेंट दिया, ह्यूमन बॉडी का मूवमेंट दिया, ऐसे मैं ऐसे बैठ के डेस्क जॉब है मेरा, एंड आई एम जस्ट काइंड ऑफ टाइपिंग एंड डूइंग माय एडिटिंग स्टफ, व्हाटएवर. अभी थोड़े टाइम में मैंने मूवमेंट कर लिया, या मैंने बैक को स्ट्रेट कर लिया, मैं थोड़ा वॉक कर लिया, स्पाइन को मूवमेंट दे दिया, देन दैट इज गुड. फिर मैं वापस बैठ सकता हूँ. बट लोग क्या करते हैं, ऐसे बैठने के चक्कर में ऐसे ही हो जाता है. गुड पोस्चर सिंड्रोम में दे काइंड ऑफ लैंड. एंड you talked about pain. So the latest philosophy that the people around the world are using to treat pain is biopsychosocial model of pain. So pain is not only biological. So any patient coming in with back pain, और मैं उसको सिर्फ ऐसे ही देखूं कि back pain नहीं चलेगा. बैक पेन का कारण, बायोलॉजिकल जो कारण है वो बायोमैकेनिक्स है, आप वो पता करो. बैक पेन की वजह से उनकी सोशल लाइफ कैसे ऑल्टर हुई है वो पता करो. दैट इज द सोशल फैक्टर ऑफ पेन. एंड उसका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होगा पेन का. जैसे एग्जांपल, पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब इतना पेन होता है कि मैं बैठ के काम ही नहीं कर पाता, और मतलब कोई एकदम ऐसे टेंशन हो गया, ये चीज का बहुत स्ट्रेस हो गया. अब वही पेन ने साइकोलॉजी भी ऑल्टर कर दिया पेशेंट का, और वही पेशेंट बेचारा को साइकोलॉजिकल इशू भी हो जाएगा, साइकोलॉजी भी उसकी चेंज हो जाएगी, सोशली भी वो चीजें नहीं कर पा रहे, और बेचारे को बायोलॉजिकल पेन तो है ही. व्हाट आई टेंड टू डू इज आई टेंड टू मेक श्योर दैट आई ट्रीट ऑल ऑफ दीज. पहले तो बायोलॉजिकली जो बायोमैकेनिक्स है उसको ट्रीट करो, उसके साथ में उसको सोशली एक्टिव बनाओ कि उसका सोशल लाइफ नॉर्मल हो जाए, तो पेशेंट को लगता है कि भाई अभी अच्छा लग रहा है, अब मैं बाहर भी आ जा सकता हूँ, दोस्तों के साथ पार्टी भी कर सकता हूँ, जो मुझे करना है मैं सब कुछ कर सकता हूँ. उसी में उसका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना, उसको मुझे टैकल करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है. एग्जाम्पल, पेशेंट को मैं डे 1 पे नहीं बोल सकता कि आपको कुछ तकलीफ नहीं है, मतलब आप एकदम ठीक हो.
वो मैं झूठ ही बोल रहा हूँ डेफिनेटली, उसको जो तकलीफ है वो एक्सप्लेन करने के बाद उसको साइकोलॉजिकली एक ऐसा पुश देना होता है दैट यू विल गेट बेटर, दिस इज द प्रोसेस दैट वी विल फॉलो। एंड आपका ये जो एक चीज, जैसे एग्जाम्पल एक पॉस्चरल पेन वाला पेशेंट है तो मैं उसको बोलूंगा भाई आपका जो साइकोलॉजिकली एक माइंडसेट है कि स्ट्रेट ही रहना ऐसा कुछ नहीं है, तो आई ट्राई टू चेंज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑल्सो। तो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर टारगेटिंग बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर ऑफ पेन, तो वही हम लोग न्यू लाइफ पे यही प्रैक्टिस करते हैं कि पेन को ब्रॉडर एस्पेक्ट से देखा जाए और उस बेचारे को ऐसा ठीक किया जाए कि वो सब फैक्टर्स उसके सही से ट्रीट हो एंड देन ही इज एबल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। और एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम ही वो है, एक नॉर्मल डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट में फर्क ही वो है। फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट की लाइफ को नॉर्मल बनाएगा, एक डॉक्टर अदर डॉक्टर ऑल्सो मेक द लाइफ नॉर्मल, बट फिजियोथेरेपिस्ट उसके एक्टिविटी लेवल, समझो एग्जांपल बैक पेन वाला पेशेंट है और उसको बाहर नहीं जा पाता, आउटिंग्स नहीं कर पाता, फिजियोथेरेपिस्ट ये करेगा कि उसका वॉकिंग भी इतना इंप्रूव हो जाएगा या उसका बैक पेन इतना बेटर है कि वो जाके 3-3 घंटे मूवीज भी देख के आएगा और हर वीकेंड मूवी देखने जाएगा, फिर भी बैक पेन नहीं होगा। तो फिजियोथेरेपिस्ट का मेन काम ये है, पेशेंट की लाइफ को नॉर्मल बनाना। तो इसके लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी है, पेन भी ट्रीट करना, साइकोलॉजी भी ट्रीट करना। पॉस्चरल पेन में तो ये दोनों चीजें आती है। Okay. So you were talking about people not opting for the physiotherapist for the first time. Like I myself have never gone there to a physiotherapist. So for someone who's coming for the first time, what can they expect in their first session? So physiotherapist is someone, I would say, should be someone who will listen to the patient. Okay. Nowadays, I have been seeing medical practice through a broader aspect. There are a lot of doctors, a lot of surgeons, a lot of physicians, surgeons, and all the other people in the medical industry. I am seeing patients are eager to tell their story. Okay. And उनको चाहिए कि कोई उनकी सुने. एंड बहुत जगह पे मतलब ऐसा होता है कि डॉक्टर्स, आई नो एवरी डॉक्टर इज बिजी, दे हैव देयर ओन शेड्यूल, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट डॉक्टर शुड एक्चुअली लिसन टू द पेशेंट. लाइक यू चार्ज व्हाटएवर यू चार्ज, बट यू शुड एक्चुअली लिसन टू द पेशेंट. अ फिजियोथेरेपिस्ट इज समवन जो पेशेंट की सुनेगा सबसे पहले. एग्जाम्पल, आप ही मेरे पास आए एंड आपने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे नेक पेन है 10 साल से, तो मैं अब ऐसा नहीं बोलूंगा कि अभी क्या हो रहा है. फिजियोथेरेपिस्ट को ये पूछना चाहिए कि 10 साल पहले क्या हुआ था जो पेन हुआ. अच्छा. So physiotherapist is someone who will go to the root cause of why the problem is happening. If they find the root cause, उसके बाद they will start up your treatment. And then वो treatment उस पे ही depend करेगा कि उसको मिला क्या. Example, it could be a muscle tear, it could be a ligament injury, it could be just a muscle spasm, or it could be I would say a dysfunction in your muscular chain or something. तो जड़ तक पहुंचना ही physiotherapist का काम है. अच्छा. So if I am consulting a patient, just to give you a brief, I had one patient, a young guy, and he had back pain for almost, if I remember, more than 5 years or 10 years. I remember 5 to 10 years के बीच में था उसका back pain. So patient told me that he came for consultation. I kind of saw everything. Then he said कि मैंने उनको बोला MRI रिपोर्ट कहाँ है, तो MRI रिपोर्ट he said कि सर इतना सारा MRI रिपोर्ट है, and you must be imagining कि इतना बड़ा बड़ा फिल्म एंड. तो पेशेंट ने बोला, मैंने बोला कितने हैं, देन ही गिव मी अ स्पेसिफिक नंबर, बोला सर इतना है. तो आई एम दैट पर्सन, आई टोल्ड कि जितना है ना सब आप उठा के लाओ. एंड वो पेशेंट का बैठ के मैंने सब MRI के फिल्म्स देखे, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज इंजरी, सब फिल्म्स देखे, सबके रिपोर्ट चेक किए, सब किया. देन ये चीज ना, मतलब ये चीज कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक है डॉक्टर्स के लिए भी और जो बडिंग फिजियोथेरेपिस्ट है उनके लिए भी, कि कोई सुनने को ही राजी नहीं है. मतलब ऐसा तो नहीं है ना यार कि आप अगर उसकी सुन लोगे वो आपको पैसे नहीं देके जाएगा. We as doctors we charge for consultation as well, right? Okay. It's not like कि patient आया बात किया और चला गया and he's not paying you. Correct. वो एक different scenario है. So when you listen to the patient, they gain a lot of confidence. Okay. कि किसी ने तो हमारी बात सुनी. So what I tend to do is I listen to the patient, get the diagnosis from the day one of the problem. Okay. Day one पे या तो कुछ फॉल होगा, या तो कुछ इंजुरी होगा, या तो कुछ डेफिशिएंसी होगा, या तो कुछ एक चीज होगा जिसके बाद ये सब शुरू हुआ है. अदरवाइज ह्यूमन बॉडी इज समथिंग कि वो एक होम्योस्टेसिस में चलती रहती है अच्छे से, कुछ नहीं होता है. लेकिन एक जो चीज है उस तक पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है. सो आई टेंड टू मेक श्योर कि मैं उस तक पहुंचू. अगर मुझे ऐसा लगा, एग्जांपल यू कम टू मी एंड से कि सर मैं घर पे कुछ ऐसे, मम्मी डैडी जा रहे थे तो मैंने वजन उठा के खाली लेके गया था एंड उसके बाद से आया शोल्डर पेन और उठाते टाइम थोड़ा झटका आया था. And if I check and I realize कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है and there is some muscle tear, I am the person, I'll tell you, Sean, go get an MRI, and after that only I'll be able to treat you better.
देन पेशेंट ऑल्सो फील्स कि हाँ यार डॉक्टर साहब ने चेक किया देखिए एंड देन उसके बाद सब मुझे समझाया भी, और अब उनको चाहिए कि मैं खाली इन्वेस्टिगेशन कर लूँ, उसके बाद डॉक्टर साहब मेरा ट्रीटमेंट चालू कर देंगे। तो पेशेंट का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही न्यू लाइफ में मैं बोलूंगा कि ये हमारा यूएसपी है एंड हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट यही है कि हम न्यू लाइफ में पेशेंट की सुनते हैं। लाइक अदर डॉक्टर्स ऑल्सो आई हैव सीन के दे लिसन टू द पेशेंट, पेशेंट को जो बोलना है बेचारा आएगा, सब बताएगा, रूट कॉज तक पहुंच गए तो अपना काम हो गया। सो इफ आई वाज एट ये एमआरआई रिपोर्ट आपका हो गया, एमआरआई रिपोर्ट में मुझे पता चला भाई कुछ मेजर नहीं है, देयर इज अ सिंपल आई वुड से ग्रेड 1 काइंड ऑफ टेयर, और वहाँ यहाँ पे एक कवरिंग होता है शोल्डर का, उस पे हल्का सा मार एंड यू विल गेट बेटर इवेंचुअली। तो आई विल एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू यू। एग्जाम्पल शॉन, आपको हफ्ते में पहले 3 बार आना पड़ेगा, देन आई विल डू दिस दिस दिस, उसके बाद आपको मैं 1-2 हफ्ते के बाद फॉलो अप पे डालूंगा, वीक में 2 बार आना पड़ेगा, देन आई विल डू दिस दिस दिस, देन मे बी वीकली वंस आना पड़ेगा, देन आई विल डू दिस दिस। तो आई काइंड ऑफ एक्सप्लेन इट टू द पेशेंट कि आपका ये पूरा प्लान है। लाइक इफ यू ओनली टेल मी, मैं फिजियोथेरेपिस्ट होकर मैं पेशेंट को डे 1 पे बोलता हूँ, मतलब एकदम डंके की चोट पे कि भाई आपको ठीक होने में 3 महीना लगेगा। अब आपको अगर कोई बोल दे कि आपको शोल्डर पेन हुआ आपको 3 महीना लगेगा, एक जनरल फिलोसफी होता है कि पेशेंट नहीं जाएगा डॉक्टर के पास, पेशेंट विल जस्ट गो टू अ डॉक्टर हु विल गिव हिम पिल्स एंड ही विल फील बेटर। बट वी हैव वन वेरी बिग फिजियोथेरेपी का प्रोफेसर, ही सेज के केमिस्ट्री फिजिक्स को ठीक नहीं कर सकता है। सो एनी इंजुरी, एनी पेन और एनीथिंग दैट इज अ डिस्फंक्शन इन द बॉडी, दैट इज फिजिक्स। एग्जाम्पल, मैंने उठाया, ट्रैक्शन आया, मेरा मसल ऐसे पुल हो गया, ये सब फिजिक्स है। लेकिन मेडिसिन केमिस्ट्री को ठीक करेगा, वहां का इन्फ्लेमेशन कम करेगा, वहां का हीलिंग बेटर करेगा, सब करेगा, लेकिन वो मसल को ट्रेन नहीं कर सकता। यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट वाला राजा है। मतलब देन ही मतलब पेशेंट को अगर एक्सप्लेन कर दिया, पेशेंट समझता है। मतलब पीपल आर वेल एजुकेटेड नाउअडेज, मतलब अगर कोई एजुकेटेड भी नहीं है, इट्स द ड्यूटी ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट कि उसको समझाया जाए कि भाई आपको इतना टाइम लगेगा, आपके मसल में ये हुआ है, इसका ये ट्रीटमेंट है, हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं। एंड वहां पे पेशेंट को जो कॉन्फिडेंस लेवल आता है ना, देन वो एक पेशेंट दूसरा पेशेंट को लाएगा, दूसरा तीसरे को लाएगा, तीसरा चौथे को लाएगा, एंड दैट इज हाउ एट न्यू लाइफ वी आर गेटिंग पेशेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, कि एक दूसरे को बताते कि यार ये डॉक्टर साहब अच्छे हैं, इन्होंने मेरी बात सुनी, इन्होंने मेरे को ठीक किया। तो वहां पे पूरा गेम चेंजर हो जाता है। एंड वी हैव लाइक आई हैव सीन केसेस कमिंग फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम नवी मुंबई ऑल्सो। एंड आई वुड से इतना दूर से को ट्रैवल करके क्यों नहीं आएगा? इफ आई टेल यू शॉन आपको अंधेरी में प्रॉब्लम हुआ एंड यू गो टू अ डॉक्टर इन टाउन, इट इज अ वेरी गुड डॉक्टर, यू विल से डॉक्टर साहब जाने दो, मैं यहाँ पे कोई बता दो, दिखा देता हूँ। बट इट्स नॉट लाइक दैट। इफ द पेशेंट gets a good doctor where his problem is solved, he'll go and he'll travel a distance and he'll go to that doctor. Okay. And MRI रिपोर्ट आया, उसको पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये आपको हुआ है, देन पेशेंट को भी लगता है कि भाई ये हो गया, अभी मुझे ये ट्रीटमेंट करना है। एंड द अदर बेस्ट पार्ट इज as soon as I start treating the patient on, I tend to make sure if it is not a chronic very chronic case, I try to make sure कि patient को day 1 पे या session 1 पे better लगना चाहिए। okay. तब आपने काम किया है। So day 1 पे अगर उसको better लग गया, example he gets 40% better, then patient को लगता है कि हाँ भाई अभी यहाँ पे that is psychological approach as well। पेशेंट को साइकोलॉजिकली ऐसा फील हो गया ना कि भाई ये डॉक्टर के पास मेरा काम होगा, तो आपके पास 6 महीना भी आएगा ना, 1 साल भी आएगा। आई हैव पेशेंट्स लाइक दैट ऑल्सो। पेशेंट फॉलो अप करेगा, लेकिन तभी करेगा जब उसको पता है कि आपके पास उसका काम कंप्लीट होने वाला है। लाइक यू डोंट लाइक डू द ट्रीटमेंट हाफ वे, बट उसका पूरा एक्सप्लेनेशन कंसल्टेशन में होता है। दैट्स हाउ वी काइंड ऑफ प्रैक्टिस एट न्यू लाइफ। सो पेशेंट हु इज इंजर्ड will go the natural way on how to treat them naturally with exercise instead of medicines. Yes. So I am not saying taking medicine is wrong, but what I would say is medicine, pharmacological जो भी चीजें हैं, उनका एक कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है। As I explained to you, कि एग्जाम्पल पेशेंट को हमने मेडिसिन भी दे दिया, पेशेंट को हीलिंग का सप्लीमेंट भी दे दिया, पेशेंट को सब कुछ दे दिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी दे दिया, बहुत कुछ दे दिया, पेशेंट का शोल्डर पेन ही नहीं जा रहा है। अब क्या होता है? नाउ नॉट एग्जैक्टली नॉट ट्रीटिंग द रूट कॉज। अब जाके उसको कोई ना कोई बोलेगा कि भाई अब तुम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ। अरे भाई वो 3 महीना बेचारे ने दवा ले चुका है, क्यों बेटर नहीं हुआ? पहले से डे 1 पे दवा आप दे दो, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास डे 1 पे भेजो ना, वो उसको बेटर, मतलब जल्दी बेटर हो जाएगा पेशेंट। इसी की वजह से ना शॉन, देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स हु आर सफरिंग, दे आर इनटू दैट फेज के डॉक्टर साहब मैं दवाई लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है,
लेकिन जैसे ही आई वुड से बंद हो दवाई गया। का असर बंद हो जाता है ना, मुझे ऐसा लगता है यार दर्द तो वापस आ गया। यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का जो रोल है वो बहुत मतलब काबिल तारीफ है कि उसको समझ में आता है कि वो कहाँ पे अटका। Okay. सो लाइक वी हैव मेड अ सीरीज ऑन व्हाई योर पेन इज नॉट गेटिंग बेटर, इफ यू रिमेम्बर। तो उसमें हमने पूरा बताया कि पेन क्यों ठीक नहीं हो रहा है। Okay. एंड एक फिजियोथेरेपिस्ट का वही काम है, वो पेन ठीक क्यों नहीं हुआ, उसने मेडिसिन भी लिया बेचारे ने, या मतलब उसके साथ में आई वुड से कि फिजियोथेरेपी भी कराया। बहुत बार ऐसा होता है, आई हैव बीन सीइंग देयर आर लॉट ऑफ physiotherapists also, they don't go to the root cause, they don't go to the biomechanics. Okay. They will just see it as the medical diagnosis. अच्छा आपको क्या हुआ है, अच्छा बैक पेन है, ठीक है तो मैं आपको ये थोड़ा मशीन लगा देता हूँ, आप ये एक्सरसाइज करो, आप बेटर हो जाओगे। अरे भाई कैसा बेटर होएगा वो? You go to the root cause why the pain is occurring. Okay. Unless and until वो root cause तक नहीं गए पेन बेटर नहीं होने वाला है। Okay. कहीं ना कहीं there will be recurrence. Okay. तो इसके लिए मेडिसिन भी जरूरी है और उसके साथ में फिजियोथेरेपी भी जरूरी है। बट द आई वुड से पेशेंट शुड अंडरस्टैंड, और आई वुड से द कंसल्टिंग फिजिशियन और द सर्जन शुड बी सो एथिकल इन द प्रैक्टिस कि उनको वो बता पाए कि भाई अभी आपकी मेडिसिन, जैसे एक्यूट इंजरी रहा तो एक्यूट इंजरी में डेफिनेटली सर्जन भी वही बोलेगा, मैं भी वही बोलूंगा, सब वही बोलेंगे कि भाई आप रेस्ट करो, आप अपने जो भी इंजरी है उसको आराम दो, आप ये मेडिसिन लो, यू विल गेट बेटर। उसके बाद I have seen very good surgeons also. They say कि 90% of spinal problems don't require surgery. अभी आपको मैं अगर बोलूँ कि 90% प्रॉब्लम बिना सर्जरी के ठीक हो यार, आप बोलो डॉक्टर साहब उनका मतलब ऐसे कैसे बोल सकते हो? बट it is real. 90 it is real. This is happening with my dad right now. My dad has a spinal problem, and the doctor is recommending him surgery. So you get him to Milan. So it's like as I explained, unless and until you don't know the biomechanics inside, it won't get better. बायोमैकेनिक्स को आपने ठीक किया, बायोमैकेनिक्स पे पूरा बायोलॉजिकल जो पेन क्रिएशन है वो पूरा टिका हुआ है। स्ट्रेस ज्यादा क्रिएट होगा वो एरिया पे तो पेन होगा, मसल वीक है, दूसरा मसल टाइट है तो उसकी वजह से वहां पे प्रेशर आ जाए तो पेन होगा। तो ये चीज को ट्रीट करने के लिए बायोमैकेनिक्स का पूरा गेम है। एंड as I said, medicines will definitely help, they will definitely make you feel better, but at some stage they have a limitation. उस लिमिटेशन को सॉल्व करने वाले आदमी का नाम क्या है? Physiotherapist. Exactly. There are a lot of electrical machines also that are used. Are those also part of regular therapy? Yes. So as I said, I cleared off in 2020, and before that I had some experience about manual therapy, how biomechanics and all of that. But we also kind of had very traditional, so this is called traditional physiotherapy in our language. So traditional physiotherapy जैसे IFT लगा दिया, टेंस लगा दिया, अल्ट्रासाउंड लगा दिया, या फिर मसल स्टिमुलेटर लगा दिया, जो भी मशीन वाइज उसका ट्रीटमेंट किया। उसमें पेन किलर कैसा है, आपने पेन किलर खाया, आपको थोड़ा टाइम अच्छा लगा एंड उसके बाद आपका पेन वापस आया क्योंकि आपने कॉज को ट्रीट नहीं किया। लेकिन जो मशीन है ना कहीं वो भी उसी सर्कल में रिवॉल्व करता है। So painkiller is also giving you better relief with acting on the anti-inflammatory mediators. लेकिन ये जो टेंस मशीन है IFT, इनका भी एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। इट कुड बी पेन गेट थियरी, इट कुड बी एंडोजेनस ओपिएट रिलीज थियरी। सो इट वर्क्स ऑन द नर्व्स दैट क्रिएट पेन एंड उसको वहां से वो ठीक करता है, मतलब ठीक इन द सेंस पेन को कम करता है। ठीक है। एंड देयर हैव बीन लॉट नंबर ऑफ स्टडीज, जैसे एग्जांपल अ पेशेंट विद ट्राइजेमिनल न्यूरalgia. Trigeminal neuralgia is something where the pain starts somewhere here and पूरे face में इतना ज्यादा pain होता है, you can't even touch it, you can't do anything and patient will scream like anything in pain. इतना चिल्लाएगा कि आप बोलो कि यार कोई इसको बेचारे को दवाई दे दो। बट वो पेन को ट्रीट करने के लिए there have been some TENS therapy that is in physical therapy. TENS का एक I would say एक छोटा सा ट्रांसमीटर जैसा उसको लगाते हैं एंड वो स्पाइनल पेन जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरalgia, नर्व पेन ट्राइजेमिनल न्यूरalgia हो गया और भी स्पाइनल पेन्स, वो ट्रांसमीटर यू वोंट बिलीव सर्जिकली वो लोग इम्प्लांट करते हैं एंड दैट ट्रांसमीटर काइंड्स ऑफ excites the acupuncture. No. So that TENS kinds of stimulates the muscle in a way कि वो पेन रिलीफ करता है। तो वो उस लेवल तक ये TENS और जो मोडालिटी जिनका आपने बात किया, ये उस लेवल तक जा चुके हैं कि सर्जिकली भी लोग इम्प्लांट करते हैं। there are surgeons who do implant TENS in the patient and उनका लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए फॉर कैंसर पेशेंट इट्स बीइंग यूज्ड।
तो ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज है, ऐसे बहुत सारी रिसर्चेज है। बट जैसे मैंने बोला, इसका एक टेम्पररी इफेक्ट है। तो 10 महीने लगाया, पेशेंट को बेटर लगा। अब वहां पे आपको एक टाइम है, लाइक द फिजियोज हु आर यूजिंग दिस मॉडलिटी, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट एट ऑल। आई ऑल्सो यूज इट, बट आई यूज इट वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। इफ आई नो कि उससे भी लगा के जो होने वाला है वो मैं हाथ से ही कर सकता हूँ, तो वाई नॉट आई यूज माई मैजिकल हैंड्स। बट उसमें जैसे मैंने कहा, वो जो टाइम फेज है ना, समझो मैंने आपको ट्रीट किया, यू आर फीलिंग बेटर। अब वो जो बेटर वाला फेज है, नाउ आई हैव दैट टाइम। सो एज आई सेड, जो फिजियोज खाली मोडालिटी यूज करते हैं, तो ये जो टाइम मिला ना जिसमें पेशेंट बेटर हो गया है, उसमें फिर फिजियोथेरेपिस्ट बायोमैकेनिक्स को ट्रीट करे। अगर उसमें उसने बायोमैकेनिक्स में खेल लिया एंड उसको बेटर कर दिया और फिर टेंस वापस यूज किया, तो धीरे धीरे करके पेशेंट इतना अच्छा हो जाएगा, पेशेंट एकदम फैन हो जाएगा, डॉक्टर साहब आपने तो मेरे को ठीक ही कर दिया। लेकिन उसने टेंस भी यूज किया, उसने बायोमैकेनिक्स भी ऑल्टर किया, बायोमैकेनिक्स भी चेंज किया एंड पेशेंट बेटर हो गया। सो आई एम नॉट अगेंस्ट द मोडालिटीज, बट आई वुड सजेस्ट यूज देम वाइजली and use them up to a stage that patient is not addicted. I have seen some cases के patient ऐसे ही आएगा, सर टेंस ही लगाना है। अब उसको मैं बेचारे को क्या समझाऊं कि भाई उससे तुम बेटर नहीं होगे। एंड समटाइम इट इज लाइक दे हैव सो रिजिड माइंडसेट कि डॉक्टर साहब नहीं, वही चाहिए, मैंने पहले लगाया था तो ठीक हुआ था। उसको बेचारे को कि मतलब कितना भी समझाओ, वो एक बैरियर रहता ही है। एंड समटाइम इट्स लाइक दे हियर इट फ्रॉम समवन, या किसी को बहुत ज्यादा पेन हुआ होगा, उसने किया होगा, उससे सुन के आए, देन उनको एकदम रिजिड हो जाता है। उनको आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू देम कि भाई इससे आप बेटर नहीं होने वाले, आपको थोड़ा खाली अच्छा लगेगा, आपका बायोमैकेनिक जब तक मैं करेक्ट नहीं करूँ आप बेटर नहीं होगे। नहीं सर लगाओ भी, लाइक ठीक है भाई लगा लो, बट उसके ही साथ में आई ऑल्सो ट्रीट द बायोमैकेनिक्स, तो पेशेंट बेटर होता है। People also talk about manual therapy. So how is that different from physiotherapy? So physiotherapy has manual therapy inside. So physiotherapy is a very broad term, and manual therapy is, I would say, if I tell you, magic of the hands. So manual therapy is something that a physiotherapist does with hands, and that a machine can't do, that any I would say medicine can't do, but एक हाथ से वो चीज हो सकती है। Example, if you ask me, a patient not able to move the neck like this, and वो बेचारा मेडिसिन भी खा रहा है, वो बेचारा टेंस भी लगा रहा है, फिर भी उसका नेक मूव ही नहीं हो रहा है। अब मैनुअल थेरेपी में मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं खाली पहले चेक करूंगा कि भाई नेक में कौन सा सेगमेंट उसका मूव नहीं हो रहा है। सो देयर विल बी वन सेगमेंट दैट इज रेस्ट्रिक्टिंग और मोर सेगमेंट्स दैट आर रेस्ट्रिक्टिंग। सो एग्जांपल, दिस इज द सेगमेंट एंड दिस इज माय हैंड, सो आई विल जस्ट पुश दिस सेगमेंट इन अ वे दैट इट विल मूव बेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन। तो मैं इसको ऐसे मोबिलाइज करूंगा कि मूवमेंट चालू हो जाए। एक बार मूवमेंट आए, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल गेट इन लाइन। बट ये आप ही बोलो, अगर ये ऐसे उसको मूव करना है जो मेरी बॉडी नहीं कर पा रही बिकॉज मुझे पेन है, अगर मैं जोर दे रहा हूँ तो पेन क्रिएट हो रहा है, एंड आप वो मेडिसिन से भी नहीं हो रहा है, मशीन से भी नहीं हो रहा, देन मैनुअल थेरेपी कम्स इनटू पिक्चर। देन द फिजियोथेरेपिस्ट काइंड ऑफ मूव्स द हैंड्स एंड मेक श्योर दैट दैट सेगमेंट इज मूविंग अगेन, एंड उसमें मोबिलिटी इंक्रीज हुआ। या तो फिर सॉफ्ट टिश्यू में जाएंगे तो जो मसल्स एकदम स्पैज्म में चले गए हैं, देयर आर सम मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स कि वो स्पैज्म को हम लोग कम कर सकते हैं। देन देयर आर सम मैनुअल थेरेपी टेक्निक जिसमें हम नर्व पेन्स को ट्रीट करते हैं। सो देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ केसेस रिसेंटली। अभी जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, तो बहुत सारे टीचर्स आते हैं एंड दे टेंड टू से कि डॉक्टर साहब ऐसे पेन पकड़ते हैं ना तो पेन हाथ से छूट जाता है। यू कैन इमेजिन कि उनका जो प्रॉब्लम है वो किस लेवल पे जा चुका है कि पेन उनका हाथ से छूट जा रहा है। देन आई काइंड ऑफ गो बैक टू द बायोमैकेनिक्स, देन आई सी यहाँ पे अंदर देयर इज अ नर्व, वो नर्व मूवमेंट नहीं होता है। सो आइडियली वी ओनली सी ना कि भाई नेक मूव हो रहा है एंड हेड मूव हो रहा है, हाथ मूव हो रहा है, नर्व ऑल्सो मूव, ब्लड वेसल्स ऑल्सो मूव इनसाइड द बॉडी। तो वो नर्व का मूवमेंट कम हो जाता है। व्हेन दे आर काइंड ऑफ प्रेसिंग, वो नर्व वो ऐसा ही स्टिफ 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 है, और उसमें इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है यहाँ पे कार्पल टनल के अंदर कि वो नर्व में सिग्नल पास होना कम हो जाते हैं, एंड देन पेन छूट जाता है। So manual therapy helps to treat that. Manual therapy also helps to treat nerve related conditions. So there are stretches जिसमें हम लोग नर्व को स्ट्रेच करते हैं, तो ऐसे करके उसका बेसिक अलग अलग नर्व के अलग अलग स्ट्रेचेस है। That also comes in manual therapy. So there are a number of things that is kind of a missing link between physios who are just doing, I would say, the machine work, and the physios who are also doing manual therapy. But if they do both the things together, तो patient जल्दी ठीक हो जाए।
Okay, now we move to the rapid fire round. We have a few questions. Number 1, foam roller or massage gun? Massager. Stretching before or after workout? Both. Worst posture mistake people make? No mistake. Okay. I explain about posture. Okay. One daily habit for a pain-free life? Move. Nice. That was an amazing rapid fire session. I don't have an hamper to give you. But thank you so much for coming today. It was a very informative and amazing session for our audience also. And we look forward to seeing you again. Thank you so much, doctor. Thanks for arranging this podcast. And to all the patients who are saying, आप ये चीज जरूर याद रखिए कि आपको जब भी कुछ दर्द हो या ऐसा कुछ इंजरी हो तो आप फिजियोथेरेपिस्ट को सबसे पहले जरूर मिलें, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट ही आपके दर्द को एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ ठीक कर सकता है. अगर आपको जरूरत लगेगा, दे विल टेल यू टू कंसल्ट अ डॉक्टर. हम किसी डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं है, बट वी वांट टू मेक श्योर दैट यू आर ट्रीटेड बायोमैकेनिकली.